Good morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator. Today we are going to discuss about motion. It is your 8th chapter of physics. So today we will discuss about motion. As you know, motion is a thing that we have to move from one place to other place. It's mean we have to move from one place to other place with respect to the surrounding. In this chapter, we will learn about how objects move in different ways. As you know, some objects are doing different type of motions, so they have to move for their different needs. For example, we are living beings. We have to get food, nutrition, and different type of requirements. For example, clothes, shelter, reproduction. All that are the requirements for the living beings. That for that we have to move, we have to change our position with respect to the surrounding. So today we are going to discuss about motion. Now in motion you will be able to see, आपको दिखाई देगा कि motion has basically three types. There is a rectilinear motion, circular motion and oscillatory motion. First is rectilinear motion. Rectilinear motion means the object is going to straight line, it doesn't change its direction. ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन आपका वो मोशन होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है. इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन. इसमें ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता. सो हियर दिस इज द सर्कुलर मोशन. Circulation motion means when an object is doing motion in a circle. जब एक ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मोशन करता है, so it will call the circular motion. Then the distance or the length of the path that is covered by an object, it would be 2 pi r. It would be 2 pi r, which is the circumference of a circle. So it is the maximum length of the path that is travelled by an object in a circular path. Now in case of rectilinear motion, as you can take an example of light. Light is always travel in a straight line, but whenever any object comes in between the path of the light, it will make its shadow. Otherwise, some objects allow to pass light through them, so this will show the shadow of them. Now the third type is the oscillatory motion. What do you mean by the oscillatory motion? Oscillatory motion means, for example, we have a pendulum. Pendulum means we have a thread and a weight or metallic board is attached with it when it is going to suspend over a thread. ठीक है, ये एक थ्रेड होता है. इस थ्रेड के नीचे एक मेटेलिक बोर्ड होती है जो सस्पेंड होती है, लटकी हुई होती है, एंड इट विल मूव फ्रॉम एंड टू एंड फ्रो मोशन करेगी एट ए रेगुलर फिक्स इंटरवल. इट विल कॉल द oscillatory motion. Oscillatory motion means the to and fro motion of an object. It will call the oscillatory motion. Now our next term related with the chapter. Now our first term is about the distance. What is in a distance? Distance क्या होता है बेटा? For example, I am just writing in it here. For example, an object is going from A point to B point, and then he is moving from B point to C point. Understand? When an object is going from A point to B point, then he is turning B point to C point. Understand? Now we have to count the total length of the path. So we have to count it with A to B length, then B to C length. Understand? Then it would be the total length of the path. So ये क्या हो जाएगी आपकी
टोटल लेंथ ऑफ द पाथ हो जाएगी. सो व्हेन वी आर आस्किंग अबाउट द टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ की बात करें हम तो क्या हो जाएगी आपकी, इट वुड बी टोटल ए बी प्लस बी. Understand? So it would be the total length of the path. Now when we are called means it is the actual path traveled by an object. ये एक एक्चुअल पाथ होता है जो ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया गया है. तो इसकी ही जितनी लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस पाथ विल कॉल द डिस्टेंस. इसी को हम डिस्टेंस कहेंगे. But when we are talking, for example, a person is directly going to Panipat, isn't it? He has to move with a direct route bus. So, in that condition, he has opted direct route bus. Means a bus is going from Jeen to Panipat. He will opt it. He will take that bus and he will directly go to Panipat. Understand? But a person who is not if a person is not opting that bus, suppose that bus is not taken up by that person, so he will opt the indirect path. ठीक है, उस केस में वो बंदा जो क्या है वो अलग अलग डायरेक्शन में घूम के जाएगा, बट उसका रास्ता तो ही हैज़ टू रीच द पानीपत ना, उसको पहुंचना तो पानीपत ही है ना. So it is the indirect way, indirect length of the path, it will call the distance. उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो डायरेक्ट पाथ होता है किसी ऑब्जेक्ट का, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. इट विल कॉल द यू कैन से इट विल कॉल द डिस्प्लेसमेंट. इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. For example, a object is going, the same object what was traveling means वही object जो आपका पहले A से B जा रहा था, B से C जा रहा था, ठीक है. Then he is going to travel from A point directly to C point. Means वो directly A point से C point पर जा रहा है. तो this distance, this length of the path will call the displacement. इसको हम displacement कहेंगे. Get my means? All of you clear now? Now I have now next topic is our speed. Next topic हमारा होता है speed. Speed basically क्या होती है, जितना हम distance travel करते हैं, means how much distance we are going to travel in a fixed interval of time. means कितना इंटरवल में कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं वो आपकी स्पीड हो जाएगी. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट स्पीड. सो इन दिस वन नाउ वी विल थिंक अबाउट द स्पीड. स्पीड क्या होती है? इट इज मीन द टोटल डिस्टेंस टेकन बाय ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन बाय इट. ठीक है, टोटल कितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है और कितना टाइम उसने उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगाया है, उनके रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं. दिस स्पीड विल बी हैव ए यूनिट ऑफ द किलोमीटर पर आवर. इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है स्पीड की, इट इज़ द किलोमीटर पर आवर. इट्स मीन 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है कोई ऑब्जेक्ट 1 आवर के अंदर. A object is traveling 1 kilometer in 1 hour. So this is the unit for the speed. ये स्पीड की यूनिट होती है. Now what about velocity? Velocity क्या होती है बेटा? It is the total displacement traveled by an object and total time taken by it. जितना टोटल टाइम उसने निकाला है और जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, दिस इज़ द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी. ये आपका वेलोसिटी का रेशियो होता है. सो इट विल कॉल द टोटल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन बाय इट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. नाउ व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द हाउ टू
इट हैज़ एन यूनिट ऑफ वेलोसिटी की आपकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड इनवर्स मीन्स मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1 आपकी वेलोसिटी की यूनिट होती है. इट इज़ द यूनिट इन केस ऑफ वेलोसिटी. अंडरस्टैंड. नाउ व्हेन वी आर टेकिंग नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द स्पीड, यदि हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड हैज़ टू टाइप्स. स्पीड के टू टाइप्स होती हैं. वन इज़ यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड इज़ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स when the equal interval of time and equal interval of distance means equal interval of time होता है and equal interval of distance वो travel करता है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स when the object is going to travel equal interval of distance with the equal interval of time. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उसको हम बोलेंगे आपकी यूनिफॉर्म स्पीड. यदि हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है. अंडरस्टैंड मीन्स कहने का कि फॉर एग्जांपल आई एम ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर्स इन 10 मिनट्स. 10 मिनट्स के अंदर मैंने 10 किलोमीटर्स को ट्रैवल कर लिया एंड इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स आई ट्रैवल 10 किलोमीटर्स. ठीक है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में भी मैंने 10 किलोमीटर्स को ही ट्रैवल किया है. सो दिस विल कॉल द यूनिफॉर्म स्पीड. इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे. बट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर्स इन फर्स्ट 10 मिनट्स एंड नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं 5 किलोमीटर्स ट्रैवल करती हूँ ड्यू टू द ट्रैफिक रीज़न. ट्रैफिक रीज़न की वजह से मैंने नेक्स्ट में 5 किलोमीटर्स को ट्रैवल किया. सो दिस विल कॉल द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. उसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं. गेट माई वर्ड्स. नाउ हाउ वी कैन जज इट. हम कैसे जज कर सकते हैं कि सम क्वेश्चंस हैव ए क्वेरी ऑफ, some have a unit of, you can say I just told you, you can say that speed has a unit of kilometer per hour but velocity has a meter per second. velocity की यूनिट आपकी मीटर पर सेकेंड होती है. now how to convert किलोमीटर पर हावर को आप कैसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे और मीटर पर सेकेंड को कैसे किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करोगे. these are two different methods. so I am going to make you clear about the concept. Now, if the object is given, यदि ऑब्जेक्ट की स्पीड यदि आपको मीटर पर सेकेंड में दे दी जाती है, देन यू हैव टू गिव इट इन हावर्स. हावर किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है. 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है? इट इज मीन दैट ए ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग 10 मीटर इन 1 सेकेंड. सो मीटर के हमें क्या बनाने हैं? पहले किलोमीटर बनाएंगे. वी हैव टू डिवाइड इट विथ 1000. हमने 10 मीटर के 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर बना लिए. अब हमने क्या करना है? वी हैव टू मेक दिस सेकेंड इनटू द हावर. इस सेकेंड के हावर में कन्वर्ट करना है. व्हाट इज़ द मेथड ऑफ इट? यू हैव टू मल्टीप्लाई मीन्स कि यू हैव टू डिवाइड मीन्स 1 सेकेंड है, 1 को डिवाइड आपको कितने से करना पड़ेगा? 3600 सेकेंड से डिवाइड करना पड़ेगा. वाई इज़ इट सो? बिकॉज व्हेन यू मल्टीप्लाई 60 by 60 मीन्स आपके 1 हावर में 60 मिनट्स होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. इसीलिए आप क्या करोगे? 60 to 60 से मल्टीप्लाई करोगे, देन इट वुड बी द सेकेंड्स. सो देयर वुड बी 3600 सेकेंड्स. 3600 सेकेंड्स बन जाएंगे एंड यू विल डिवाइड दैम. सो जब आप डिवाइड करोगे, इट्स मीन यू आर गोइंग टू 10 by 1000 मीन्स यू आर मेकिंग इट किलोमीटर. हियर 1 by 3600. इट विल बी अपोजिट टू हियर एंड इट विल बी 3600 by 1. ठीक है, 36 by 101 हो जाएगा. सो इट विल कट क्रॉस कटिंग करने के बाद इट वुड बी 36 किलोमीटर पर हावर. ये आपका 36 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा. अंडरस्टैंड. नाउ वी वांट टू कन्वर्ट 10 किलोमीटर पर हावर को
हमने चेंज करना है मीटर पर सेकेंड के अंदर। इट्स मीन यू आर गोइंग टू चेंज 10 मीन्स देयर इज ए किलोमीटर, 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर आपके 1 आवर में हो रही है। इट्स मीन यू विल कन्वर्ट 10 किलोमीटर, इट विल मल्टीप्लाई विद द 1000। ये 1000 से क्यों मल्टीप्लाई होगा? बिकॉज वी आर मेकिंग इट मीटर, मीटर बनाएंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यदि हम किलोमीटर बनाएंगे देन वी हैव टू डिवाइड विद 1000, तब हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। गेट इट माई क्लियर? नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद इट 1000, हमने 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन वी डिवाइड इट विद 3600, हमने 3600 से इसको डिवाइड कर दिया। देन आफ्टर कटिंग द वी विल गेट द 25/9, 25/9 इट वुड बी द मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। सो ऑल अबाउट दैट हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड सम न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके, एंड इन दैस न्यूमेरिकल्स, इन दैस सम्स यू हैव टू convert kilometer into meters and meter into the kilometers. So you must get this conversion in your chapter. If you have any doubt, I will clear you in the next video.